All right, friends. So recording has been started. Welcome you all to CSE Edge and PSI Rails channel. Today's agenda is we will be discussing philosophical essays and how toppers have approached various philosophical essays. Like we saw in the yesterday's question paper of essay 2021, we saw that almost all the essays, almost all the 7 to 8 essays were philosophical and ethical in nature. So let us look at some 5-6 essays which toppers have written, which are philosophical in nature. So the methodology will be, we'll read essay one by one. We'll choose the random toppers who have gotten good marks in essays, and we'll read their essays. And if you guys have any ideas, you can add value to it. You can share your opinion, share your thoughts about it. ठीक है, start कर दो sir. Single King, please start. The commitment to ideals, not idols, is the need of the hour. Ideals and ideals. Okay. So, ऐसे लिखा हुआ है, men thinks in stories, says, Yunus, अच्छा, you will. Second, before we read, shall we just discuss about the topic? Exactly topic कहना क्या चाह रहा है? जी सर, Does anybody wants to shed some light on it? जैसे कि मतलब मेरे हिसाब से इसका मतलब ये होगा कि जैसे आइडल्स हैं या पर्सनालिटीज हैं, तो उनके प्रिंसिपल्स पे मतलब चलना ज्यादा जरूरी है, मतलब रादर देन जस्ट स्टिकिंग टू देयर पर्सनालिटीज और उनके प्रिंसिपल्स को हम ना फॉलो करें, बस उनकी पर्सनालिटीज को प्रेज करें। मेरे हिसाब से मतलब ये कहना चाह रहा है वो, तो उस हिसाब से डिस्कस करेंगे। करेक्ट। तो बेसिकली पर्सनालिटी कल्ट वर्सेस द वैल्यूज दैट दे स्टैंड फॉर। जैसे अब कल परसों जैसे सिंधुताई सपकाल महाराष्ट्र की काफी ज्यादा प्रोमिनेंट सोशल वर्कर थी, तो शी डाइड. So after her death, lot of people put status updates saying ki rest in peace and all that, paying tributes. But then how many of us really espouse those values? तो ये स्टेटमेंट उसी के बारे में बोलता है ना. जैसे गांधी की बात तो सभी करते हैं पॉलिटिक्स में, यूज तो कोई नहीं करता है. एग्जैक्टली यही बात। ठीक है, और कुछ ऐड करना है किसी को, या फिर वी कैन कंटिन्यू विद द ऐसे. ठीक है, चलो आगे चलो फिर. Man thinks in stories, says Professor Yuval Noah Harari in his best-selling book *Sapiens*. From the advent of human civilization, we have created numerous stories to pan on learning or to understand the world around us. Also, every story has a hero and an idol whom we tend to follow and learn. All the religions are nothing. क्या लिखा हुआ है ये क्या है, कोई बताएगा? bunch of stories, क्या है bunch of stories, whatever of stories with one or more heroes. Islam has Prophet Muhammad, and Hinduism has Rama or Krishna. Christianity has Jesus. Over the course of time, we humans begin to forget the underlying ideas in the stories, and all we are left with our ideas whom we tend to hero worship, conveniently forgetting the values and ideals they were trying to convey. तो इन्होंने वो कर दिया, मतलब इंट्रोड्यूस कर दिया कि हाँ मुझे समझ में आ गया कि क्या ही ऐसे कहना चाह रहा है. तो सर आपने जैसे बताया कि हाँ, डोंट वर्शिप द हीरो रादर देन their values and values, right? However, we also have another set of stories in the form of Panchtantra and Dadi Nani Kahani, which more or less do not have any hero or ideal, but only the ideals. But such story books are supposed to be read only by children, and when we grow up, we tend to forget all such ideals which we once read. Ideals are abstract, they are metaphysical and subject to one's understanding, and therefore are hard to follow and actually realize
the huge importance. Okay, realize the huge, but at the same time, ideals are also uh, customizes and maneuvers to fit into one's set values and characters. Here comes the importance of ideals. It is the ideals which gives a physical form, a personal touch to the abstract set of ideals. When we think about the ideals of non-violence, we invariably associate to Gandhi or Lord Mahavira, both of them being the ideals. Ideal are just the manifestation of underlying sets of ideals. Okay, ठीक है. But the real problem arises when we tend to idol worship and show true commitment to the idols than their teachings. When we do uh, so, we automatically restrict our contours of gaining knowledge and conveniently ignore the flaws in those ideals. Let me explain through an example. Shah Rukh Khan is truly a Badshah of Bollywood, being completely an outsider. He conquered their industry and ruled for over 25 years. He served as an idol of lack of youth for his ideals like hard work, honesty, perseverance, courage, never say die attitude, his humor and with wit. But while looking at the list of ideals, if we tend to idol worship Shah Rukh Khan, we might be justify his features like nasty smoking habit, which is himself accept as his flaw. You tend to adopt his flaw, also our lines. We tend to adopt the flaws into our lives. Okay, when we respect someone more than the person himself, we must respect and show commitment to his set of values and ideals. Every man and woman has his or her flaws, which are often ignored by the idol worshipper. Devdutt Patnaik, an author of many mythical and religious books, has very interesting take on this. He says that Mahabharata, we often tend to categorize Pandava as a good guys and Kaurava as a bad guys, a clear black and white distinction. However, this according to him is a very restricted understanding and oversimplified version to understand the deep messages. अच्छा, इन्होंने पहले शाहरुख खान के एग्जाम्पल दिया उनके हार्ड वर्क एंड जो भी है, उसके बाद इन्होंने पटनायक जी को लाया है. He is very famous on writing mythological books, right? Anyone wants to say anything? इस बस मेरे को एक अंबेडकर का कोट याद आ रहा है, जो हीरो वर्शिप होता है ना, उसके बारे में उन्होंने कुछ कहा था कि हीरो वर्शिप इज इन पॉलिटिक्स इज श्योर शॉट रोड टू टोटलिटेरियनिज्म या फिर डिक्टेटरशिप. मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में या फिर पर्सनल स्फीयर में हीरो वर्शिप ठीक है, बट पॉलिटिक्स में हीरो वर्शिप नहीं होना चाहिए. तो जहां पे भी इस ऐसे में अगर हम पॉलिटिकल डायमेंशन लिख रहे हैं ना, तो वहां पे वो कोट डाल सकते हैं, अंबेडकर वाला. क्लियर था ना? Yes, yes, sir. कहाँ थी मैं? He says that both Kauravas and Pandavas have their flaws and ideals, which they stood by. He said that no one eventually won the great war. Everyone lost something or the other. Kauravas lost land and Pandavas lost their kins and brother. For us human, it is not advisable used to idolize the hero of just great
epic. Rather, we should respect and idealize the great values of and ideals of great men, irrespective of the black and white categorization. अच्छा, इन्होंने कंटेम्पररी चीजों को भी लिया है, black and white, that happens in nowadays in societies, whether Western or Indian. Buddha used to say that one should surely listen to his teachings, but should only emulate them in his life. Emulate ही है ना, पता नहीं कैसे लिखते. If his own conscience allow him to do so, Imbibe. one should. अच्छा, imbibe. Thank you so much. जस्ट अ रिक्वेस्ट, मतलब जो पढ़ रहा है ना, टू रिस्पेक्ट दैट पर्सन. if he or she is getting stuck somewhere, I request all of you to please interrupt and tell correct pronunciation या फिर correct word जो है ना. So we should not allow one person to struggle. Let's do it together. Continue. Okay, one should not accept something because Buddha says so. This gives the essence of Greek learning which Buddha wanted to give the to world as his life. His main teaching was Apo Deepo Bhava, be your own light. तो ये बुद्धा को भी इंक्लूड करते हैं, मतलब डोंट फॉलो ऑल दोस इंस्ट्रक्शन विदाउट एग्जामिनिंग. एक्चुअली एक इंसिडेंट है बुद्धा का कि दो लोग जाते हैं बुद्धा के पास, एंड वन ऑफ देम पूछते हैं कि क्या भगवान है, तो वो बहुत ही ज्यादा भगवान में बिलीव करता था. तो बुद्धा कहते हैं नहीं भगवान नहीं है. तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे मैं तो पूरी जिंदगी भगवान भगवान करता रहा और अभी बुद्धा बोल रहे हैं कि नहीं है. फिर दूसरा था, वो भगवान में बिलीव नहीं करता था. बुद्धा ने कहा उसे कि नहीं भगवान है. तो मतलब ये इंसिडेंट है उनके लाइफ का, ठीक है. तो हम पता नहीं ये डाल सकते हैं या नहीं, बट उन्होंने भी ये कहा कि मेरी बातों पे मत जाओ, तुम खुद ढूंढो कि हाँ सच्चाई क्या है. जस्ट डिस्कवर द ट्रूथ रेदर देन कि मैंने जो बोला उस पे मत वो विश्वास वगैरह करो. काइंड ऑफ बुद्धा ने भी यही कहा था. सो एनीवन कुछ ऐड करना चाहते हो तो. Buddha says instead of thinking about whether God is there or not, you just concentrate on the path. You'll be reaching the final destination. Don't concentrate on whether God is there or not. Okay. Thank you. History of the world has given in various remarkable leaders and commanders. We often tend to idealize. For example, Napoleon is often stated as the greatest of all the European leaders in the recent history, but here also we must adhere to his noble and quality ideals and categorically disassociate ourselves from his favors. अच्छा, ये FRAVS क्या है? ये फ्रेम्स है क्या? Flaws. अच्छा. Ideal can be learned from anywhere. Even the evil dictator like Hitler also had good ideals like leadership, patriotism, war acumen, which should be learned and adopted by us. But while doing so, we must be very cautious of his hatred and racist views. Look at the Vices, vices. Okay. Thank you. Look at the ideals and judge him over that. Adopt the good one and dump the bad one. These has to be an objective analysis. Ideal perish and ideal thrives. Idols perish and ideal thrives. ये अच्छा है. When we associate our commitment to a person or a materialistic thing, the commitment dies with the death of person. It is the ideal thought that
thoughts and union of a person that lives on. For example, Steve Jobs died 8 years ago, but his ideal of leadership, innovation, and hard work, commitment for the global good, still inspire people and young entrepreneurs. Now, nobody talks about his troubled personal life. Idols serve as the benchmark which we tend to achieve. They are the end in themselves. Idols are just the means to guide us and show the path to reach the end. In this regard, books become our best friend. They guide us to achieve the greater goods and achieve higher ideals in an interesting manner. For example, the classic work of J.K. Rowling, Harry Potter, uh, serve, serves is Series. okay, series is not just adored for the beautiful and magnificent world of magic and adventure, but also about the ideals of courage, friendship, compassion, sacrifice, etc., which way, which the main protagonist show, while also highlighting the inherent flaws and insecurity in each of them. Okay, I think खत्म हो गया क्या? Why is there understanding ideals versus idols a need of hour? अच्छा, ये जो main topic है ना, उसको अब counter कर रहे हैं. We as a present society are in क्या है Experiencing. okay experiencing, right, an unprecedented phenomena. If information overflows, there is information all around us through the social media nexus, digital media. For the newer generation who get exposed to the world of the social media very soon, when their own cognitive abilities and maturities are work and developing. This makes them vulnerable to not able to make distinction between between the two idols and ideals. अच्छा, ये फेक मतलब सोशल मीडिया के बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं. A whole new world social media influencer is coming up, which by their very name trend to influence young minds at their fortunate Formative stages. Format, young generations are, and even the millennials often fail to understand the amount of fakeness and cosmetic nature of the digital world. People often tend to idealize whatever they see around us and often fall into the depression for not being lives up like their idols. When we idealize someone, we often overlook the social background, personal history, and socio-economic status of the person. We see only what the person wants to see us to see. Okay, this is a classic case of phrases. A little knowledge is dangerous. The moral failure of our society is fabric. Thank you. Is getting meeker and is beginning to fear apart as we see not only criminal architects rising in the number, but also their barbaric nature, which tends to same entire humanity. People are needed to be reminded of our ideals and value sets. They need to be made realize that idols are not the end of themselves.
rather key to happy life her idea lies in ideals. सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं ठीक है, कंटिन्यू. Of course, the ones who are in the public life and who tends to be idolized by the youth should maintain high ideals and moral values from their end as a moral obligations to impure लग रहा है. impure masses. Inspire. Sorry, Acha, inspire. Right. It has to be conceived. Yeah, a continued effort. Combined. Okay. अच्छा अच्छा, combined है. continued efforts from both ends. Combined effort from है, both right. ends. अच्छा, combined. Okay. Efforts from the both ends. People show commitment to the ideals and supposedly क्या है ये यार? Supposedly. Okay. ठीक है. Supposedly ideals should show good ideals. आगे बढ़ा. हो गया. Thank God. चलो, नाइस अटेम्प्ट, वेरी वेरी ब्रेव अटेम्प्ट आपका पढ़ने का. थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग इट. एक बार समराइज कर सकते हो फिर से पैराग्राफ बाय पैराग्राफ क्या फ्लो था एकदम पूरा? यस सर. हाँ, आप ही कर लीजिए क्योंकि आपने पढ़ा है तो थोड़ा सा ज्यादा बता पाओगे. यस सर. टॉपिक था, जस्ट फॉर द पीपल हु हैव जॉइंड रिसेंटली, टॉपिक इज कमिटमेंट टू आइडियल्स not idols is the need of the hour, and this essay was written by Divyanshu Nigam who has scored 141 marks in 2020 exam. ठीक है, बता दीजिए फिर से एक बार क्विकली. सर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है एक बुक के साथ, और ऑथर नोआ हरारी, जिनका वो सेपियंस करके एक बुक है, उसमें उन्होंने बताया कि हर बुक में एक हीरो होता है, और हीरो होता है जिसको, और आइडल होता है. लेकिन थोड़ा और आगे जाए, लेकिन जो हम जैसे इस्लाम में हो गया तो प्रोफेट मोहम्मद हो गए, हमारे में कृष्णा हो गए और जीसस वगैरह. पर हम जब दादी और नानी की कहानी सुनते हैं तो उसमें कोई हीरो वगैरह नहीं होता है, राजा रानी ही होते हैं, बट एक मैसेज होता है उसके पीछे. ठीक है. और ऐसा जैसे पंचतंत्र, दादी नानी की कहानी, तो उसमें हम क्या कहते हैं कि मैसेज ड्रॉ करते हैं, रादर कि हाँ भाई राजा कौन था, रानी कौन थी, काइंड ऑफ. ठीक है. तो थोड़ा आगे चले, वो हो गया. और ऐसे स्टोरीज तो बच्चे ही पढ़ते हैं, बड़े लोग तो अब वो उन्होंने पढ़ना बंद कर दिया. मतलब इस ऐसे में ऐसा है आइडल्स ऑफ. उसके बाद अभी इन्होंने गांधी जी को किया कि उनके आइडल्स को, जब भी नॉन वायलेंस हमारे दिमाग में आता है तो हम गांधी जी को ही याद करते हैं कि हाँ उनका है. ओके. मतलब तो वो कहते हैं कि बट द रियल प्रॉब्लम अराइजेस व्हेन वी. ओके. तो हम क्या करते हैं कि हम उनकी पूजा करने लगते हैं, रदर देन कि उनकी जो भी वैल्यूज हैं उनको एमुलेट ना करके हम उन्हीं की पूजा करने लगते हैं. ठीक है. बेसिकली उन्होंने इंट्रो में थोड़ा सा ये दे दिया, ये युवल नोएल हरारी का दे दिया एक्सप्लेनेशन, एंड देन आइडियल्स को और आइडल्स को डिफाइन करा है काइंड ऑफ. जो सेकंड पैरा था ना, थर्ड पेज 2 जो स्टार्ट हुआ है, हाँ जी सर. आइडियल्स को एक्सप्लेन करा है थ्रू लॉर्ड महावीर एंड गांधी. ठीक है. दैट इज नॉन वायलेंस एंड. हाँ. उसके बाद ये बोलते हैं, शाहरुख खान का एग्जाम्पल देते हैं, फिर वो कहते हैं कि उनके सारे यूथ आर इम्प्रेस्ड बिकॉज ऑफ हिज आइडियल्स लाइक हार्ड वर्क, ऑनेस्टी, परसेवरेंस, करेज. ठीक है. और ये नास्टी स्मोकिंग वाला मुझे समझ में नहीं आया, मतलब ये क्या कहना चाहते हैं? वी माइट आल्सो ग्लोरीफाई हिज फीचर्स लाइक नास्टी स्मोकिंग. अच्छा उनकी जो हैवी स्मोकिंग. ओके. ही इज अ स्मोकर. I don't know about him actually. I don't follow. Sir, actually, I was also thinking इसमें शाहरुख खान का एग्जांपल देने के बदले डायरेक्ट हिटलर का एग्जांपल लिखते कि जिस टाइम पर वो हिटलर पॉपुलराइज हो रहा था तो वो इतना ज्यादा, मतलब सिर्फ एक कॉन्ट्रास्टिंग एग्जांपल दे रहा हूँ, वो मोदी से भी कई ज्यादा मतलब एंजॉय करता था अथॉरिटी अपने स्टेट में.
तो इसमें भी हम लिख सकते हैं कि उसके आइडियल्स के बदले उसी को आइडियलाइज करने लग गए लोग। जैसे उसका आइडियल क्या था कि एक स्ट्रॉन्ग स्टेट बनाया जाए, लेकिन वो लोग इतना आइडियलाइज करने लग गए कि लोग अंधे हो गए, और जो वो बोलता गया वो उसी बात पर मानने लग गए। तो हमें भी पता है फिर कल्मिनेट हुआ। मतलब ऐसा मुझे लगा कि शाहरुख खान का एक एग्जाम्पल लिखने से अच्छा डायरेक्ट वही रिकॉग्नाइज्ड एग्जाम्पल लिखते कि कैसे कुछ आइडल्स को फोरफ्रंट पर रखकर उसने अपने आप को खुद आइडल बना लिया, और फिर मतलब वी नो व्हाट कल्मिनेटेड इनटू। अच्छा, वन थिंग आई डोंट लाइक अबाउट दिस ऐसे इज दैट इसमें सेग्रीगेशन नहीं करा है। मतलब इस ऐसे में ना काफी क्लियरली हर एक स्पीयर्स ऑफ लाइफ को दिखाने का मौका था। जैसे हिटलर पॉलिटिकल स्पीयर में है, फिर जो शाहरुख खान है बॉलीवुड या फिर जो कल्चरल स्पीयर होता है सोशल इन्फ्लुएंस वाला उसमें है, स्पोर्ट्स का एक आध दिखा सकते हैं। तो देयर वाज अ चांस क्लियरली कि मतलब द वे आई वुड हैव फ्रेम्ड दिस ऐसे would have been in the first half I would show negative aspect of this thing, and in the second half I would show positive aspect की क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, what should be the way forward। एंड नेगेटिव वाले में एग्जांपल तो बहुत सारे अपने पास, पॉजिटिव वाले में एग्जांपल देंगे कि पॉजिटिव एग्जांपल भी होते हैं कि आइडियल भी अच्छा है आइडियल्स भी अच्छे, दोनों भी अच्छा है उसका। तो ठीक है, विल सी दिस ऐसे फर्स्ट देन वी कैन डिस्कस। और ये हिटलर वाला तो उन्होंने डाला ही है, पुतिन तुम जो बोल रहे हो ना वो उन्होंने डाला है। हाँ वो नीचे में हिटलर, मैंने सुना ना, थोड़ा सा नीचे में डाला था उन्होंने। ठीक है जी, हाँ जी कंटिन्यू हाँ कर वो लीजिए। कॉपी दिव्यांशु निगम की ना 2019 के अटेम्प्ट किए, डेट देखी तो। ओके ओके, ठीक है, नो इश्यूज, क्विकली पढ़ लेते हैं और आगे देखते हैं। मूवी का एग्जांपल लिख सकते हैं हम, वो फैन, शाहरुख खान का एक मूवी है ना फैन। ठीक है, आगे चलो। सिंग ओके। तो फिर वो एक एग्जाम्पल देते हैं देवदत्त पटनायक का, जो ऑथर है बहुत सारे रिलीजियस बुक्स के, ठीक है, लाइक महाभारत, सीता। तो थोड़ा आगे बढ़ाइएगा। तो उसमें भी वो कहते हैं कि मतलब पांडवाज अच्छे चीजों के लिए ग्लोराइज होते हैं और कौरवाज बैड चीजों के लिए, बट अंत में उनको मिलता क्या है, ये कौरवाज तो हार ही जाते हैं और पांडवाज को भी कुछ मिलता नहीं है, एक्चुअली उनके अपने ही मारे जाते हैं। तो उसमें क्या है, फॉर ह्यूमन हीरोज गेट तो इसलिए वो कहते हैं कि हम ह्यूमंस को वी शुड नॉट वर्शिप आइडियल्स रेदर देन वी शुड फॉलो द आइडियल्स। मतलब जब तक अच्छा ठीक है, ये बुद्धा वाला देख लेती हूँ। बुद्धा used to say that one should surely listen to his teachings। हाँ, तो बुद्धा कहते हैं कि तुम मेरी टीचिंग्स को जरूर सुनो, बट उसको वही खुद उसको खुद में ढालो आफ्टर एग्जामिनेशन। ऐसा नहीं कि मैंने जो बोला तो तुम्हें वही करना है, मैंने बोल दिया तो वही करना है, ऐसा नहीं है। तो एक यहाँ पे इन्होंने अच्छा खासा दिया है, आपो दीपो भव, बी योर ओन लाइट। ठीक इसके है, वही बाद आत्मदीप। मैं कर लूँ क्या आगे? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो फिर हिस्ट्री से एग्जांपल दिया है कि नेपोलियन ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल यूरोपियन लीडर्स था, नोबल क्वालिटीज थे, आइडियल्स थे, बट उसके फ्लॉज भी थे बहुत सारे। तो फिर आइडियल्स लर्न फ्रॉम एनीवेयर, इवन इविल डिक्टेटर लाइक हिटलर हैड गुड आइडियल्स लाइक लीडरशिप, पैट्रियटिज्म, वॉर एक्यूमेन, लेकिन कॉशन ऑफ हिज हैट्रेड एंड रेसिस्ट व्यूज। तो मतलब आइडियल्स कहीं से भी सीख सकते हैं, लेकिन हमें जजमेंट आना चाहिए कि क्या सीखना है क्या नहीं सीखना है। फिर गुड वंस बैड वंस कौन सा है वो देखना चाहिए। आइडल्स पेरिश, आइडियल्स थ्राइव्स। तो अच्छा पॉइंट है ये। कमिटमेंट डाइज विद द डेथ ऑफ द पर्सन, द आइडियल्स थॉट्स विजन। स्टीव जॉब्स का एग्जांपल दे दिया, वो मर गए 8 साल पहले, लेकिन अभी भी इनको आइडल माना जाता है लीडरशिप, इनोवेशन, हार्डवर्क, कमिटमेंट के लिए। फिर बेंचमार्क, आइडियल्स जो होते हैं उससे बेंचमार्क सेट होता है, दे बिकम एंड इन देमसेल्व्स, वेयरएज आइडल्स रिमेन जस्ट लाइक द मीन्स। तो बुक्स जो है वो बेस्ट फ्रेंड बनते हैं लोगों का आइडियल सेट करने के लिए। ग्रेटर गुड्स एंड अचीव हायर आइडियल्स,
एग्जाम्पल दिया है जेके रोलिंग ने द हैरी पॉटर सीरीज में। एडवेंचर तो है ही इसमें, बट आइडियल्स ऑफ करेज, फ्रेंडशिप, कंपैशन, सैक्रिफाइस ये भी सेट करा है। फिर आगे क्वेश्चन रेज करते हैं कि व्हाई इज दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ आइडियल्स वर्सेस आइडल्स नीड ऑफ द आवर। क्योंकि प्रेजेंट सोसाइटी में क्या हो रहा है, इंफॉर्मेशन ओवरफ्लो है। फिर न्यूअर जनरेशन जो आया है वो सोशल मीडिया सेवी है। कॉग्निटिव एबोलिशन या एब्लिशन क्या है वो, कॉग्निटिव एबिलिटीज एंड मैच्योरिटीज आर वीक एंड डेवलपिंग। दिस मेक्स इट वल्नरेबल एंड डिस्टिंक्शन करना पॉसिबल नहीं है आइडल्स और आइडल्स के बीच में। फिर सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं बहुत सारे, टेंड टू इन्फ्लुएंस फॉर्मेटिव स्टेजेस में। जैसे कि एग्जांपल कॉस्मेटिक नेचर, फेकनेस है डिजिटल वर्ल्ड में, मतलब हम सिर्फ पॉजिटिव चीजें दिखाते हैं फेसबुक पे, निगेटिव नहीं दिखाते हैं, तो इसको लेके लोग डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। वी कैन यूज दो एग्जाम्पल थे ना, गेम्स कोई तो आए थे बीच में लास्ट ईयर, डेडली गेम आए थे ना, कौन से थे वो, ब्लू व्हेल गेम, करेक्ट। हाँ, तो उसको हम कोड कर सकते हैं यहाँ पे, वो भी एक आइडियल बन जाता है लोगों के लिए। फिर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, ठीक है। मोरल फैब्रिक ऑफ सोसाइटी खराब हो रहा है, टीयर अपार्ट हो रहा है। क्रिमिनल टेंडेंसीज आ रहे हैं, बारबेरिक नेचर। फिर हाँ, फिर इट इज नेसेसरी टू रियलाइज कि आइडल्स आर नॉट द एंड इन देमसेल्फ, बट आइडियल्स इज द की टू हैप्पी लाइफ। तो यहाँ पे जो सोक्रेटिस को कोट कर सकते हैं, गुड लाइफ लिख सकते हैं अपन। फिर मोरल ऑब्लिगेशन है, तो यहाँ पे अपन इमैनुअल कांट को भी डाल सकते हैं, मीन्स एंड एंड्स वाला अप्रोच। हो गया खत्म इतने में ही। कंक्लूजन ठीक है, एवरेज लिख रहा है कि पब्लिक लाइफ में हीरो टेंड्स टू आइडियलाइज्ड, हाँ आइडियल्स की जरूरत है, ठीक है, ऑल राइट। किसी को कुछ ऐड करना है क्या इसमें? एक्चुअली बहुत कुछ कर सकते थे, डायमेंशन वगैरह स्ट्रक्चरिंग कर सकते थे बहुत कुछ इसमें। वाई इन्होंने गलत जगह पे इंट्रोड्यूस करा है, आई थिंक अगर इसको इंट्रोडक्शन के बाद स्टार्ट करते कि लाइक व्हाई इज इट नेसेसिटी, इंस्टेड ऑफ गोइंग इन द लाइक आई थिंक 8 या 9th पेज पे स्टार्ट करा इन्होंने अपना व्हाई। नहीं, जैसा किसी ने बताया ना कि ये जो पेपर, ये आंसर शीट लिखा हुआ था, इसका डेट अगर देखोगे तो 5/8/2019 है, तो विच वाज लाइक मेंस जनवरी में हुआ था, जनवरी 1920, हाँ जनवरी 21 में, ठीक है। तो दैट्स फाइन, मतलब इम्प्रूवमेंट होता ही है यार ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, इसमें यार इसमें इंट्रोडक्शन के लिए कोई स्टोरी लिख सकते हैं क्या, जो आइडियल्स एंड आइडल्स का दिखा सकता है कॉन्ट्रास्ट? अम्बेडकर के ऊपर लिख सकते हैं। लाइक बहुत सारे सोशल मूवमेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे लोग उनका नाम लेके वायलेंस ये सब यूज करते हैं और अम्बेडकर को आइडियलाइज करते हैं, जबकि उनका जो आइडिया था वो कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स यूज करने का था और नॉन वायलेंस था। तो इसके वजह से एक लैग क्रिएट हो जाता है। पर सर इसमें एक एक्सपेक्ट इन्होंने ये मिस कर दिया कि कभी कभी आइडियल्स भी गलत होते हैं। जैसे एक कंट्री थी, उसने है ना इतना सारा करेंसी ड्रॉ कर दिया था कि है ना इन्फ्लेशन इतना ज्यादा हाई हो गया था कि आज भी वो कंट्री सफर कर रही है, नाम नहीं आ रहा शायद वेनेजुएला, ठीक है। तो इस तरीके से उनका आइडियल तो ठीक था, ठीक है, और उधर पे आइडल्स का कोई रोल ही नहीं था। वहाँ जो उस टाइम पे वहाँ पे उनका जो लीडर था, ठीक है, उसका सिग्निफिकेंट रोल नहीं था, जबकि आइडियल्स का रोल था। बट उसके कारण कंट्री को कितना ज्यादा सफर करना पड़ा। तो एक ही चीज पे एम्फेसाइज देना और फिर उसको बैलेंस नहीं करना। तो बेसिक ये है कि आप अपने कंसाइन से डिसाइड करो कि आपको आइडियल्स को किस तरीके से फॉलो करना है और आइडियल्स को किस तरीके से फॉलो करना है। तो ये चीज भी इन्होंने बहुत ही हाई लेवल तक मिस करी है, ठीक है। और वो जो आप कह रहे थे कि डिफरेंट डायमेंशन हो सकते थे, डेफिनेटली हो सकते थे। जैसे स्पोर्ट्स में ये मोहम्मद अली का एग्जाम्पल लिख सकते थे कि वो बहुत अच्छा है ना स्पोर्ट पर्सन था, बट उसकी जो मोरल वैल्यूज थी, ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे वो गलत थी, ठीक है ना। वो रिलीजन को कमिटेड था, मतलब वो किसी भी चीज को कमिटेड ही नहीं था, ठीक है ना। वो लॉयल था, ठीक है, इस तरीके से। और जैसे पॉलिटिक्स में बहुत सारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो क्रिमिनल हैं, ठीक है। तो इस तरीके की बहुत सी चीजें लिखी जा सकती थी। इनफैक्ट इसमें डाटा भी दिया जा सकता था। करेक्ट, ठीक है। मतलब इन माय ओपिनियन इस ऐसे में ना थोड़ा सा डायमेंशन वाइज करने का स्कोप तो बहुत था, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, स्पोर्ट्स हो गया, ये सब डायमेंशन लिख सकते थे जैसे।
इंटरनेशनल भी दे सकते हैं आइडियल्स एंड आइडियल्स का रेफरेंस। ठीक है, आई थिंक वी शुड मूव ऑन। अच्छा, दिव्यांश निगम की एक और कॉपी है विजन की वेबसाइट पे ही, वो है 11 दिसंबर 2020 की है वो, ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स के बाद है ना, 1 ईयर के बाद। आर रिलीजन एंड साइंस ऑलवेज एट ऑड्स, ये फिलोसॉफिकल में आएगा क्या? डज दिस साउंड लाइक फिलोसॉफिकल एंड एथिकल ऐसे? सर एक्चुअली एथिक्स का टॉपिक भी है ना, रिलीजन वर्सेस लॉ या फिर ऐसा कुछ, तो आ तो जाएगा उसी में। ठीक है, इसको पढ़ ले क्या फिर? और ये कल जो पेपर आया था ना उससे भी अलाइन हो रहा है ये वाला कल का कौन सा टॉपिक, कल का कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन। आउटसोर्स वो था ना, आउटसोर्स वाला क्वेश्चन सेल्फ नंबर 1 डिस्कवरी, ही है। सेल्फ डिस्कवरी इज सेक्शन 1 आउटसोर्स। था। यस सर। लेकिन सेल्फ डिस्कवरी का और रिलीजन और साइंस का मतलब थोड़ा अलग नहीं लग रहा है? ओके रिलीजन इज देयर। हाँ हम्म। ठीक है रिलीजन एंड साइंस। अच्छा, ये देखो बता उसमें पढ़ना है कि साइंस नहीं ये चीज? दिव्यांशु सर का ही है तो आई थिंक पढ़ लेते एक, जल्दी बोलो यार बाकी लोग। यस सर, पर ये रियल इज रैशनल और वो वाला था ना, उससे है ना थोड़ा मैच करता है वो चलो मैं जो पढ़ लेता है हूँ, ठीक है? था ना शायद, रियल इज रैशनल वाला। ठीक है, मैं पढ़ लेता हूँ। पहले तो इस टॉपिक से क्या समझ आ रहा है कि आर रिलीजन एंड साइंस ऑलवेज एट ऑड्स, तो मतलब वही है, दोनों में कंपेरिजन दिया है। आई थिंक इसमें गांधी भी आ सकते हैं, बहुत सारे कोट्स आ सकते हैं ना, रूसू भी डाल सकते हैं अपन, मॉडर्निटी को क्रिटिक करते हो। विल सी हाउ ही हैज और अप्रोच, देन वी सर, कैन डिस्कस। जी बोलिए। और जैसे है ना जो मार्स ऑर्बिटर मिशन था, मून मिशन, ठीक है, उसके टाइम पे है ना जो हमारी इसरो थी उसने अपना है ना जाके जो स्ट्रक्चर होता है वो है ना गॉड को ऑफर करा था, तो जो हमेशा कॉन्ट्रास्ट में होता है जो कहते हैं ना, वो वैसा नहीं होता है। स्टिल इंडिविजुअल लेवल पे जो साइंटिस्ट हैं, ठीक है, जो साइंस को फॉलो कर रहे हैं, दे आर आल्सो फॉलोइंग देयर रिलीजन। करेक्ट। इसका एक और एग्जाम्पल है, जब मतलब एपीजे अब्दुल कलाम और वो जो गए थे ना, ये जो थुम्बा सेंटर बनाया था उन्होंने, तब उस टाइम पे ऐसा कि दे नीडेड लैंड टू फॉर दैट सेंटर टू बी क्रिएटेड, बट वहां पे लैंड था नहीं। तो उस टाइम पे सब विलेजर्स ने मिलके एंड जो नियर बाय लोकेलिटीज थे ना, उन्होंने मिलकर ऐसा करा था कि एक जो चर्च था, बहुत बड़ा एरिया था उनका, वो पूरा डिमोलिशन करके उसी एरिया में कॉर्नर में चर्च बनाया था। तो बेसिकली ये एपीजे अब्दुल कलाम की बुक में एनेक्डोट था कि हाउ साइंस एंड रिलीजन केम टुगेदर and how they cooperated with each other. So we can quote this anecdote here as well. और कुछ याद आ रहा है किसी को जो ऑड्स में है या ऑड्स में नहीं है? 2 पार्ट आएंगे ना ऐसे में एग्जांपल्स। सर रिलीजन जो होता है वो स्ट्रेंथ देता है ऑड एंड स्ट्रेसेस को, है ना, स्ट्रेसेस को दूर करने में, जैसा कार्ल मार्क्स ने भी कहा था, ठीक है। पर जब हम है ना इसकी मतलब इससे प्रेरणा लेके जब सोचते हैं तब हम साइंस तक रीच करते हैं। अदरवाइज अगर हम पॉजिटिव ही नहीं होंगे तो हम साइंस को कैसे ऑप्ट करेंगे? तो ये कुछ एस्पेक्ट है जिसको हाईलाइट किया जा सकता है। ठीक है, एक और चीज मुझे याद आ रही है, अल्बर्ट आइंस्टाइन, आई थिंक जब उनका लास्ट का पीरियड था तो ही हैड कमेंटेड कि यार ये इथिक्स स्पिरिचुअलिटी भी कुछ है, इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो इग्नोर कर सकते कंप्लीटली। किसी को कुछ आइडिया है क्या कोट के बारे में? उन्होंने कुछ कोट किया था, उन्होंने कुछ बोला था। साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम, ऐसा कुछ था ना, एंड रिलीजन हाँ विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। ऐसा कुछ तो गांधी वाले 40 में भी है ना कुछ, तो 40 में क्या है रिलीजन के बारे में, साइंस के बारे में? कैन समबडी टेल? अच्छा, one request here guys, everyone, there are 20 participants. I request all of you to unmute your mic and give your inputs, तभी ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। ठीक है, for now I'll start reading the essay. If you have any input, please stop me in middle. You can say anything you want. Okay? So ये दिव्यांश निगम का essay पढ़ रहे हैं अपन। This was written on 11 December 2020. ठीक है, तो are religion and science always at odds? क्वेश्चन पूछते हैं, सो हाउ डिड इट ऑल बिगैन?
How did our Mother Earth came into being? How did human came into existence? It was a curious mind of us humans that asked these questions right from start. When questions were asked, the answers were sought, and numerous theories, or rather, in Professor Yuval Noah Harari's words, stories began. According to Christianity, it was Almighty God who said, "Let there be light," and it all started as per Hinduism. It was Lord Vishnu who created Lord Brahma from his navel. अच्छा, एक चीज यार, स्पेलिंग मिस्टेक अगर मैंने कुछ पढ़ने में गलत कर दी तो आप लोग प्लीज बोल दो, मैंने गलत प्रोनाउंस कर दिया तो, ठीक है? And asked him to create Srishti, the universe, and so on. All the religious have their own story, and for centuries all the people believed in stories until science evolved and challenged these stories with facts and evidences. And what we have today is the non-almighty theory of Big Bang as the initial point of the universe. This was the very first instance of science coming at odds with religion. Wow, powerful intro यार, in my opinion. मतलब इन्होंने स्टार्ट करा है रिलीजन से बताने से, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, एंड देन युवल नो हरारी का जो स्टोरीज वाला पॉइंट है वो बताया, एंड देन ही केम टू साइंस एंड हाउ दे आर एट ऑड्स. डज एनीबडी वांट्स टू ऐड एनीथिंग अबाउट इंट्रोडक्शन, या कुछ बोलना है इसके बारे में? हेलो नो सर, कैरी ऑन. लगता है सब इंट्रो आप लोग कैसा करोगे? जो इस ये सर ने तो ऐसा करा है, एंड देन ही राइट्स इन दिस एसे वी विल एनालाइज हाउ रिलीजन एंड साइंस को एग्जिस्ट इन ओवर ह्यूमन सोसाइटी फॉर सेंचुरीज एंड टू व्हाट एक्सटेंट आर दे ऑड्स. लेट अस फर्स्ट सी हाउ रिलीजन स्टार्टेड. तो इन्होंने एक स्टोरी टाइप का लिख दिया कि भाई ऐसा ऐसा है, इवोल्यूशन लिख दिया हिस्टोरिकल पूरा, एंड देन ही स्टार्टेड विथ ऑड्स कैसा है, एंड एक एंकर पैराग्राफ लिख दिया जिसने बताया कि ऐसे में हम क्या क्या करने वाले हैं. डू यू वांट टू डू थिंग्स डिफरेंटली? आप लोग कैसे करोगे? हाउ वुड यू गाइस इंट्रोड्यूस दिस ऐसे? अरे बोलो यार. प्रतीक, चैंडलर, मिस यूनिवर्स, दिशा, टॉक, सेजल, वैभव, पूजा, कांचन, आर्या, अनटैप्ड, वैभव, देव. प्लीज स्पीक अप गाइज. कोई अल्टरनेटिव आइडिया फॉर इंट्रोड्यूसिंग दिस ऐसे? Any inputs, people? कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज डाल सकते हैं इंट्रोडक्शन में, अगर आप बुक का नाम वगैरह पता नहीं है तो. मतलब हाउ साइंस एंड रिलीजन ऑड है, और मतलब ये है कोऑपरेटिव है. इसका दो लोगों के व्यूज, ऐसा कुछ स्टोरी स्टार्ट कर सकते हैं. सर, रिलीजन जैसे जैसे स्टार्ट हुआ, ठीक है, उसने बहुत अच्छा रोल प्ले करा, लोगों की लाइफ में है ना स्टेबिलिटी लाई, ठीक है. बट उसके बाद इनस्टेबिलिटी आई, और उसके बाद जो साइंस का अराइवल हुआ ह्यूमन सोसाइटी में, ठीक है, उससे भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है. फिर उन दोनों के बीच में जो है ना कॉन्ट्रास्ट, मतलब जैसे हेलिलियो था, मतलब कि जो हेलिलियो वाली, सॉरी मुझे आ नहीं रहा है, ठीक है, कि जो सन होता है, अर्थ गोल है और सन राइज होता है, ठीक है, भगवान सन को उठाता नहीं है, गिराता नहीं है, ठीक है, ये वाले कॉन्सेप्ट थे. इस पे जो कॉन्फ्लिक्टिंग आइडिया थे, वहां से ये जो कॉन्फ्लिक्ट था वो स्टार्ट हुआ था, ठीक है. तो इस तरीके से भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है. कि मेन रीजन तो यही था ना कि सोसाइटी में रिलीजन बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा था, स्टेबिलिटी ला रहा था. फिर जब साइंस आया तो वो रैशनल बेस्ड था, और फिर उसके बाद है ना लोग एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं थे. सबसे पहले यही थ्योरी थी. तो इस तरीके से फ्लो में चल सकता है, ठीक है. Okay. और फिर So, है ना मतलब We बीच can में write up. इन बिटवीन कैसे स्पिरिचुअलिटी, ठीक है, एक इंडिविजुअल की लाइफ को इंटरनल स्टेबिलिटी देती है, ठीक है, पीस ऑफ माइंड देती है, ठीक है. और किस तरीके से साइंस जो होती है वो इरेशनल चीजों को लाइफ से हटाती है. उस पे है ना बहुत सारे एग्जांपल्स, ठीक है, इंडिविजुअल, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पे. जैसे नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे हिटलर का एग्जांपल, क्योंकि हिटलर जो था ठीक वो है, ठीक काफी है. इरेशनल You था. should leave it आगे to देखते हैं अपन. introduction. Sir, I would like अभी to इंट्रोडक्शन add की one बात हो thing. रही थी ना.
हाँ सर, आई वुड लाइक टू एड वन थिंग। सॉरी सर जैसे इंट्रोडक्शन तो इसमें बहुत अच्छा दिया है सर, बट इफ यू आर सपोज टू राइट अ एनेक्डोट or something like that, so I think I could draw a contrasting debate between a priest and a scientist. A priest can be of any religion, or a scientist, and how do they debate on the existence of human and existence of this word religion and existence of this word science. The priest examines how religion is to him, and the scientist realizes what science is to him, and how they reflect each other's contrasting debate. And through this debate we will start with a point that there are conflicting values, and in the same debate I would try to accommodate in the last para that how at some instances both of them coincide as well. So इसमें मैं एक तरीके का मतलब एक बैलेंस्ड व्यू लाना चाहूंगा सिर्फ 2 पेज में। ऐसा कोशिश करूंगा कि पहले 1.5 पेज जो है, हाँ, वो कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज ठीक को है। उठाए, बाद में अच्छा, एक काम उसको करते हैं, इसके ऊपर अगर इंट्रोडक्शन कोई अल्टरनेटिव किसी का आता है ना, तो आप लोग प्लीज ग्रुप में डाल देना बाद में, ठीक है। For now I'll continue, and just a request guys, wherever if you feel you have some inputs, please stop me and you can say whatever you want to, okay? So I'll read ahead. The origin of religion. According to book Sapiens by Professor Yuval Noah Harari, the most क्या है वो most fundamental need of religion, the God, some higher authority, was found to explain the nature around us, which the primitive humans found hard to explain themselves. Clouds got dark and rained heavily, but our ancestors failed to reason why that happened. So they assigned the reasoning to some higher authority, God, like Lord Indra in Hinduism. How did oceans move all the time? Why it causes floods again? No answers to these events. So people again assigned a higher authority to these events. Example, Lord Poseidon in the Nordic culture. Why and how do people die and what happens after death? Again, failing to find an answer, another god was invented. Example, Hades in the Nordic, Ra in Egyptian culture. As these gods were created, the humans started to give offering, perform sacrifices, meditation over centuries to please them and get their blessings. So numerous scriptures and mythological stories and even God's commandments came into being, and a religion was born. When a full-fledged religion started, the competition started of whose religion is the best. काफी अच्छा लिखा है इन माय ओपिनियन, मतलब बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेन करा है। एंड अच्छी बात मुझे लगी ना, डाइवर्सिटी दिखाई उन्होंने, इजिप्शियन कल्चर से लेके नॉर्डिक से लेके हिंदुइज्म तक। तो दिस थिंग आई लाइक मोस्ट। यू वांट टू ऐड एनीथिंग? ओरिजिन ऑफ रिलीजन के बारे में था ये, ठीक है। फिर साइंस आया, साइंस द मिथ बस्टर। व्हाइल ऑल दिस फाइट वाज गोइंग ऑन अमंग पीपल और रिलीजियस केम, क्या लिखा है वो, religion, science, and started providing answers to many of these human questions. It was Copernicus who challenged the Roman Catholic Church's model of geocentricity by providing heliocentric model. Nice historical input. Though he met with tragic end, as his theory was found to be sorry फॉर इंटरप्शन, बट इन्होंने है ना वैसा ही लिखा है जैसा मैंने सोचा था। ओके ठीक है। तो हम यहाँ पे कॉपरनिकस का एग्जांपल दिया है कि उन्होंने कैथोलिक चर्च का जो मॉडल था जियोसेंट्रिसिटी, उसको चैलेंज करके हेलियोसेंट्रिक मॉडल बनाया। दो ही मेट विद ट्रेजिक एंड, बट हिज थियरी वाज फाउंड टू बी करेक्ट लेटर ऑन। अ ग्रेट myth was broken. Science over centuries gave answers to rain patterns, about planetary winds, and answered about why ocean became violent due to tides and wind pattern. Soon the need of heavenly explanation to our question started fading away. Now the science came at direct odds with religion and the associated rituals. Many religious gurus, priests found an imminent threat to their identity because of science. Newton gave laws of motion to explain almost every physical event around us. Einstein gave the model to explain the universe, expansion, space-time fabric. Very recently, in his seminal book
A Brief History of Time. Stephen Hawking contradicted the existence of God. Even our own ancestors like Aryabhatta and Bhaskara in ancient times gave very scientific reasoning about Earth and universe. तो इसमें भी अगर आप देखेंगे ना, तो जहां पे इन्होंने साइंस का राइज बताया, साइंस मिथ बस्टर बताया, he started with Copernicus, कैथोलिक चर्च का जियोसेंट्रिसिटी वर्सेस हीलियोसेंट्रिसिटी, फिर प्लानिटरी विंड्स, रेन पैटर्न को एक्सप्लेन किया, ओशन का वायलेंट क्यों है वो बताया, बिकॉज ऑफ टाइड्स एंड विंड पैटर्न, देन रिचुअल्स को बस्ट कर दिया उन्होंने, फिर इसके वजह से गुरुज एंड प्रीस्ट का आइडेंटिटी हर्ट हो गया, न्यूटन ने लॉज ऑफ मोशन दिए, आइंस्टाइन ने यूनिवर्स एक्सपेंशन का मॉडल दिया, स्पेस टाइम का बताया, स्टीफन हॉकिंग इन हिज बुक ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम कुछ बताया, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को कॉन्ट्रडिक्ट करा, आर्यभट्टा भास्करा को उन्होंने छोड़ा नहीं, मतलब बेसिकली वेस्टर्न एज वेल एज इंडियन विजडम को कंबाइन कर लिया उन्होंने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर दे ऑलवेज एट ऑड्स विद ईच अदर? To answer this question, we need to understand the larger meaning of religion and differentiate it from superstitious and unreasonable dictats. Religion is very personal thing which tends to establish a connection between man and his own understanding of the divine. That's it. This only should be constituted as religion. And here, a scope of science is not at all at odds with religion. In fact, they both are म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डोमेन्स। तो अभी तक वो कॉन्ट्रडिक्शन बता रहे थे सारे के सारे, अभी वो बता रहे कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डोमेन्स, इंक्लूसिव डोमेन्स, म्यूचुअली इंक्लूसिव है कि एक्सक्लूसिव? नहीं, एक्सक्लूसिव ही है, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक है, नो इश्यूज। Here, when we include rituals and religious practices as the main determinant of being religious, the problem begins. We have to understand that rituals, customs, etc. are the invention of society as per their understanding and product of their time. For example, in Hinduism, it is said that we should not cut nails at evening as it displeases God and brings bad luck. Here, the science is rightfully at odds with the religious dictat. The reasoning here was that in older times there was only candlelight and blade or knife to cut nails, thus would in dim light one might hurt himself. Thus, to make people avoid this cutting, a religious explanation was given. Similarly, it is said that if you perform numerous pujas at home, give hefty dakshina to the priest, God will shower blessings and provide good luck to you. Science is at odds here. Again, this ritual is product of Brahmanical social order, where Brahmins were supposed to live by begging or taking dakshina from people. So such a religious connotation came up. In Christianity, numerous magic and unbelievable stories are associated with life of Jesus. Him drinking poison, turning water into wine, etc. All these have no scientific rationale. Rather, these are to establish as Jesus as the godly figure. While this being said, it is not that religion and science are always at odds. For example, nearly religion including Hinduism, Islam, Christianity consider earth as Prithvi, the mother earth, and calls out its purity and cleanliness. This is supported by science. A clean, क्या लिखा है वो? Surrounding. Clean surrounding reduces health risk and maintains environmental stability. Hinduism says that it is utterly auspicious to newborn to have mother's milk. It brings health and good fortune. तो मतलब ये वाला साइंस से भी कॉन्ट्रास्ट करेंगे अभी. To the baby, this again is scientifically proven, even promoted by WHO. Religion teaches us to see God in every living being, man, animal, plant, and treat them with love. This is scientifically backed and forms basis of environment ethics है क्या वो? ठीक है. तो रिलीजन और साइंस और बोथ, तो ये शायद कंक्लूजन करते होंगे अभी यहाँ पे. हाँ, दो पेज बचे, लास्ट के कंक्लूजन होगा यहाँ पे. If we look around our nature, the level of perfection, example, if the carbon dioxide concentration of atmosphere was 5% at present, it is less than 1%. Life would not be possible on Earth.
the perfect culmination of genes and DNA wherein 1% error can have drastic consequences. The perfect distance from sun of earth, seeing all this perfection, all these perfect coincidences, a supreme authority, the existence of God seem to be reasonable explanation. Behind this graved क्या है वो? grand things. Okay, हाँ. Behind these grand schemes of perfect things, thus religion continues to be important. But with time, we must accommodate scientific understanding and evolve our rituals and unreasonable religious dictats. We as a human race must appreciate the science behind our nature and must continue to pursue it to seek out answers which the science is still unable to provide. The scientific temper will bring innovation and propriety to the society. Science must be used to question the dogmas, Farman, not to challenge the mere existence of God as it should be in a personal affair. Moreover, till time science is unvalued. Unable. Acha, till the time science is unable to provide the history prior to Big Bang, there is always scope for religion to kick in, and science, religion continue to coexist. ठीक है, so that's it. This was the essay written by Divyanshu Nigam, 141 marks in 2020. इसमें सर आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट वन थिंग अबाउट दिस एसे इन द कंक्लूजनरी रिमार्क. मैंने एक विजन आईएएस की एसे प्रोग्राम को ज्वाइन किया था, मतलब टेलीग्राम से डाउनलोड करके पढ़ा था. उसमें वो मैम बताती थी कि दो कंक्लूजन्स होते हैं, एक पेनल्टीमेट कंक्लूजन और एक अल्टीमेट कंक्लूजन. फिलोसॉफिकल एसेस में अल्टीमेट कंक्लूजन देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है. जैसे आप एक बार स्क्रॉल करके लास्ट पैराग्राफ में दिखाएंगे कंक्लूजन के लास्ट पैराग्राफ को, तो आप लोग फाइंड करेंगे कि ये जो लास्ट वाला पैराग्राफ है ये बिल्कुल मतलब इन्होंने ये अल्टीमेट कंक्लूजन होता है. मतलब उसमें मैम ने बताया था कि कुछ एक ऐसा पॉइंट दिया जाए फिलोसफिकल एसेज में उस टॉपिक से रिलेटेड कि वो मतलब वो आप आंसर किए ना हो ऊपर. जैसे बिग बैंग के बारे में अभी तक इसके बारे में कहीं उन्होंने कुछ बोला नहीं था कि रिलीजन कैन टेक ओवर मोर ओवर ये. तो आई फाउंड दिस वेरी इंटरेस्टिंग कि इन्होंने भी वो कॉन्सेप्ट ऐड किया है विजन आईएएस वाला कि एक अल्टीमेट कंक्लूजन बनाया जाए जो कंक्लूजन ऊपर ना कहीं से कोइंसाइड कर रहा हो मगर बाद में आदमी को ऐसे पढ़ने के बाद सोचने में मजबूर कर दे कि हाँ देयर आर स्कोप्स फॉर रिलीजन एंड साइंस एंड सो व्हाट, मतलब हर टॉपिक में ऐसा. तो आई वुड लाइक टू मतलब हाईलाइट दिस कि हाँ इन्होंने उसको यूज किया है. लास्ट पैरा जो है कंक्लूजन का वो एक अल्टीमेट कंक्लूजन को दिखाता है. उससे पहले वाले जितने भी 6 पैराज हैं पेज 13 और 14 में आई गेस वो उनका पेनल्टीमेट कंक्लूजन था जहां पर वो सारा ऐसे है उसको कंप्रेस करके एक तरीके से कंक्लूजन बना रहे थे. Excellent observation, Putin bhai. Thank you. Anything else? Anybody else wants to add? एक चीज मुझे मिसिंग लग रही है इसमें थोड़ा सा, जो साइंटिफिक टेम्पर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है ना, वी कुड हैव एडेड दैट. मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक एंगल आना चाहिए था जिसमें दोनों भी है, रिलीजन भी है आर्टिकल 25 के अंदर एंड साइंटिफिक टेम्पर भी बताया हुआ है. और कुछ कॉन्स्टिट्यूशन का याद आ रहा है किसी को? इन्होंने इंट्रो मुझे लगता है बहुत ज्यादा लंबा की दिया, वरना ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस हैं जो दिखा सकते थे. फॉर एग्जांपल रिलीजन की वजह से क्रूसेड वॉर्स हुए थे जिसमें मिलियंस ऑफ पीपल डाइड, एंड देन अगेन साइंस की वजह से गन्स इन्वेंट हुई जिसमें वर्ल्ड वॉर में फिर से लोग मरे. तो ऐसे मतलब बहुत जगह कॉन्ट्रडिक्शन दिखाए जा सकते थे. और फिर लाइक कहीं ना कहीं मैं पक्का ये भी मेंशन करता कि रिलीजन है ना इन फॉर्म ऑफ इस्लाम या हिंदुइज्म नहीं, ह्यूमैनिटी एज ए रिलीजन ट्रीट करना चाहिए हमें, ऐसा कुछ पॉइंट भी लिखना चाहिए था. फिर अगेन दिखाने के लिए दोनों का कंपैरिजन, लाइक टेक्नोलॉजी हमें आज क्लोज ला रही है तो सोशल सॉलिडारिटी बढ़ रही है, और रिलीजन का भी इनडायरेक्ट इंटेंशन यही था कि हम सोसाइटी को टुगेदर ला सकें. फिर अगेन कंपैरिजन के लिए स्ट्रैटिफिकेशन बढ़ रहा है सोसाइटी में साइंस के वजह से. लाइक कार्ल मार्क्स अगर किसी ने पढ़ा होगा ऑप्शनल में तो वो कैसे बोलता है कि रिलीजन इज ओपियम ऑफ मासेस, और जो मतलब एलिट क्लास है बुर्जुआसी है वो लोग टेक्नोलॉजी को यूज करके एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, मतलब उसके वजह से उनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड मोड ऑफ प्रोडक्शन है. तो मुझे लगता है सर ने ये थोड़ा ना इंट्रो
इन्होंने मतलब 5 पेज का इंट्रो ही दे दिया वो बैकग्राउंड दिखाने में। और जैसा दृश्यम सर ने बोला ना कि हम लोग सीधा 2 पॉइंट में डिवाइड करते हैं, वैसे लिखना चाहिए था। और एक दूसरी बात इसमें ये देखने की है ना कि इन्होंने ना इनके राइटिंग में काफी अच्छा रोमांटिसिज्म है, मतलब ये टू द पॉइंट बात नहीं करके थोड़ा सा फिलोसॉफिकल वे में बात करते हैं, ये इनका अच्छा लगा मुझे। यार एक्चुअली ना मतलब ऐसे जैसे आई थिंक यूपीएससी ने भी खुद एडमिट करा है, देर इज लॉट ऑफ सब्जेक्टिविटी इन एसेज। तो मतलब देर आर हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स दैट यू कैन इंक्लूड। 12 पेज में सब कुछ आना पॉसिबल नहीं है, कहीं ना कहीं मतलब वही है, एवरीबडी डेफिनेटली विल हैव समथिंग टू ऐड। तो दैट्स फाइन, लेट अस जस्ट डिस्कस इट एंड फिर अपना अपना ऐसे जब बनाएंगे अपन, देन वी कैन फ्रेम आवर ओन स्ट्रक्चर दैट सूट्स अस। तो डिस्कस कर लो, अभी और कुछ है तो बताओ। सर जैसे एक एक्सपेक्ट ये भी ऐड किया जा सकता है कि द टेम्पल ऑफ रिलीजन, ठीक है, देयर इज ऑलवेज अ साइंस ऑफ टेम्पल। मतलब अभी क्या फाइंड किया जा रहा है कि जो टेम्पल बनाए गए थे, ठीक है, उसमें साइंस इन्वॉल्व है। जो टेम्पल में है ना, सुबह मॉर्निंग में जो है ना वो होती हैं, प्रेयर्स होती हैं, ठीक है, टेम्पल को एकदम क्लोज बनाया गया है। क्लोज इसलिए बनाया गया है क्योंकि जब टेम्पल्स में प्रेयर्स होती हैं तो उससे जो इको साउंड प्रोड्यूस होता है वो जब ह्यूमन की तरफ जाता है, जब आप डोर पे खड़े होते हो, तो उससे आपका स्ट्रेस रिलीव होता है। ठीक है, जो नाइट प्रेयर्स होती हैं उसको लिसन करने के बाद आपका स्ट्रेस इस तरीके से रिलीज होता है, यू गेट अ वेरी साउंड। लाइक अगर आप सिर्फ उसको सुन के अगर आप सिर्फ 4 घंटे सोते हो, ठीक है, तो आप तब भी फ्रेश फील करोगे। तो कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स भी लिखे जा सकते हैं जैसे टेम्पल ऑफ रिलीजन एंड साइंस ऑफ टेम्पल, दोनों। एक्सलेंट पॉइंट मिस अननोन, एंड थैंक यू चैंडलर, काफी अच्छे पॉइंट्स थे आपके भी, बढ़िया पॉइंट्स थे। और कुछ ऐड करना है किसी को? Yes, this essay is written very wonderfully. I like to reaffirm कि उनको 141 मार्क्स क्यों मिले हैं, क्योंकि उन्होंने सारे एंगल्स यूज करे। ठीक है, अब मैं कुछ अपना एड ऑन कर देता हूँ कि जैसे मैं अगर लिखता तो मैं और क्या इसमें जोड़ देता। वैसे तो बहुत बढ़िया लिखा हुआ है, मैं 1-2 पॉइंट, जैसे इंडियन सोसाइटी का पार्ट है कि वी हैड अ को एग्जिस्टेंस ऑफ साइंस एंड रिलीजन, जैसे अभी बताया साइंस ऑफ टेम्पल। So our own Rishi Munis were basically religious guru. Also added with that they were doing scientific explorations. They were producing scientific theories. Though we didn't have the culture of theoretization. We had the culture of smriti. So so it passed on from generations to generations. So my point of is that we had a coexistence of science and culture, science and religion in our ancient text, Also, from there evolved the religious practices. For example, clapping in the temple or while worshipping, it has scientific basis to it for with respect to the acupressures. Okay, so I can add that point also here. Also we also okay, I am missing that point. I'll later on add it. Okay, thank you. मैंने एक चीज नोटिस करी है, ठीक है, इनके ऐसे में कि ये बहुत ही मतलब ऐसा लिखते हैं जैसे कि कोई भी इंडिविजुअल जो बहुत ज्यादा नहीं जानता हो, ठीक है, बहुत अच्छी उसके पास नॉलेज नहीं है, बहुत बहुत अच्छी वाली नॉलेज नहीं है, बट वो इतना मतलब लो लेवल पे, एकदम मिडिल लेवल पे लिखते हैं कि किसी को भी समझ में आ जाएगा, कि किसी को भी कोई भी पढ़ेगा तो समझ लेगा कि कहना क्या चाहते हैं, इनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस पैरा को लिखने में। तो ये बहुत अच्छी चीज है। और यही सर मैंने अभी है ना अनु कुमारी मैम के मार्क्स देखे, उनके 153 है। मैं ये पूछ रही थी कि उनकी कॉपी डिस्कस हो चुकी है क्या, या अवेलेबल भी है क्या? अच्छा, एक चीज नोट कर लो, जो 150 या 160 2018 2019 के है ना, दैट इज इक्विवेलेंट टू 140 इन 2020। तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि हर साल मार्क का जो होता है ना वेरिएशन कम ज्यादा होते रहता है। जैसे इथिक्स में एक साल 162 भी आए थे, इसका मतलब ये नहीं कि वो ज्यादा अच्छे थे, ऐसा कुछ नहीं है। तो डिस्कस करना तो कर सकते हैं। इफ यू हैव एनी कॉपी प्लीज शेयर इन द ग्रुप। सर मतलब इंटर ईयर पैरिटी भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा हम लोग को। अगर है कोई अच्छा कॉपी उनका तो आप प्लीज डाल दीजिए ग्रुप में, हम डिस्कस कर लेंगे उसको। अच्छा ये बताओ नेक्स्ट कौन सा ऐसे करना है अभी? डू यू गाइस हैव एनी सजेशंस? इन्हीं का सेकंड वाला ऐसे हो गया क्या सर?
नहीं, वो क्लाइमेट चेंज के बारे में है, विच इज नॉट फिलोसॉफिकल इन नेचर। आज हम सिर्फ फिलोसॉफिकल ऐसे कर रहे हैं जी। हाँ हाँ, ओके एक चीज पूछनी थी, जैसे फिलोसॉफिकल एसेज में जैसे यहाँ पे इन्होंने सब हेडिंग यूज की, तो सब हेडिंग जब हम यूज करते हैं तो थोड़ा ऑब्जेक्टिव हो जाता है ऐसे, तो फिलोसॉफिकल एसेज में सब हेडिंग यूज करना, इसके बारे में क्या करूँ? क्वेश्चन मार्क लगा दो जब भी ऐसा लगे ऑब्जेक्टिव हो रहा है ना, तो फिर वो ओपन एंडेड हो जाएगा। जैसे इन्होंने भी देखो क्वेश्चन मार्क लगाया था कहीं पे, तो इन्होंने लिखा था आर दे एट ऑड्स विद ईच अदर क्वेश्चन मार्क। तो फिर तुम्हें ऑड्स दिखाना है या फिर इवन दिखाना है, मतलब दोनों लिख सकते हैं। नहीं, क्वेश्चन मार्क से नहीं, मेरा ये कहना है कि सब हेडिंग्स लिखना चाहिए नहीं लिखना चाहिए, इसके बारे में है, मतलब ज्यादा अच्छा होगा लिखने से या नहीं होगा। अच्छा, इस पे आई वुड लाइक टू आंसर दिस वन। इस पे एक्चुअली क्या है ना, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए, बट इन माय ओपिनियन स्टेटमेंट्स अगर तुम विदाउट ब्रेकिंग द फ्लो ऑफ द एसे, अगर तुम हेडिंग दे पा रहे हो, मैं मतलब शायद अनुदीप को अगर बुक पढ़ रहा था मैं, तो उसमें वैसे लिखा था कि ठीक है हेडिंग्स आर फाइन बट इट शुड नॉट ब्रेक द फ्लो ऑफ द एसे। अगर वो पूरा कोहरेंस आ रहा है ना तब फिर ठीक है, एंड जो भी तुम हेडिंग दे रहे हो क्या वो फिट हो रहा है। जैसे इसमें क्या था, साइंस हाउ डिड इट ओरिजिनेट, साइंस यानी क्या ऑड में है कि नहीं, हाउ इट बस्टेड द मिथ ऑफ ये। तो ऐसे में हेडिंग आ सकते हैं, बट वो स्किल्स के ऊपर है तुम्हारे कैसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर वो फिट इन नहीं हो पा रहे तो इट इज बेटर अवॉइडेड। मतलब इट एक्ट लाइक अ डबल एज शॉर्ट बेसिकली। अगर करना है तो उसको प्रैक्टिस करके करना पड़ेगा, बाय रेजिंग द राइट क्वेश्चंस, बाय गिविंग द राइट हेडिंग्स एंड बाय एंश्योरिंग दैट द फ्लो इज नॉट ब्रोकन। बाकी लोग अपने ओपिनियन दे सकते हो। जैसे ये फिलोसॉफिकल एसेज होते हैं ना, उसमें जैसे ये सब हेडिंग बनाना बहुत मुश्किल काम होता है। जैसे अभी कोई कोर्ट वाला ऐसे रहेगा ना, तो उसमें तुम क्या सब हेडिंग बनाओ, ये बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ये सब हेडिंग बनाने से फ्लो भी बन जाता है, तुम्हारा पता चल जाता है पढ़ने वालों को कि किसमें क्या लिख रहा है। ये तो फिलोसॉफिकल एसेज जब लिखते हैं तब हम कहाँ से कहाँ चले जाते हैं, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है काम। तो मेरे एक्सपीरियंस से तो मैं बता रहा हूँ कि अगर तुम हेडिंग्स यूज करना शुरू करोगे तो एक फ्लो भी सही लगेगा और पढ़ने वालों को पता चलेगा कि इसमें क्या लिखा है। जैसे ये वाले में हमें परफेक्ट पता चल रहा है कि इसमें क्या लिखे, ये तो बाकी इसके पहले वाला जो कर रहे थे किस पैराग्राफ में उन्होंने क्या लिखा है, ये हमें पढ़ने के बाद फिर सोचना पड़ता है कि ये क्या लिखा है, फिर इसके बाद क्या लिखा है। आई एग्री यार, मतलब आई कंप्लीटली एग्री। फिलोसॉफिकल एसेज में स्पेसिफिकली अगर हम, मतलब देयर इज अ वेरी हाई चांस कि हम थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाए, टॉपिक से भटक जाए। तो उसके लिए एक फ्रेमवर्क डिसाइड करना कि भाई ये 3 पेजेस में मैं ये लिखने वाला हूँ, नेक्स्ट 3 पेजेस में मैं ये लिखने वाला हूँ। शुड बी अ फिक्स पैटर्न इन योर माइंड कि हाँ ये ऐसा ऐसा करना है। राइट राइट। मतलब तुम हेडिंग लिखो या मत लिखो, जैसे मैं ऐसा करता था ना, अब हेडिंग हर डायमेंशन की हेडिंग तो पॉसिबल नहीं होती है, तो आई वुड कंटिन्यू राइटिंग इट, बट जो मुझे लग रहा है ना यार इस पर्टिकुलर पैराग्राफ की डिफाइनिंग कीवर्ड है तो मेरे लिए हेडिंग टाइप का काम कर सकता है, तो मैं इसको स्क्वायर बॉक्स बना देता। जैसे अगर पॉलिटिकल डायमेंशन स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, तो पॉलिटिकली स्पीकिंग कर दो एंड कंटिन्यू राइटिंग, कंटिन्यूस होगा, फ्लो रहेगा, बस उसको एक स्क्वायर बॉक्स बना लो उसको। तो हेडिंग का भी काम कर रहा हो, एक वर्ड को हाईलाइट कर रहा हूँ मैं बस। अच्छा एक चीज यार, लक्ष्मण तिवारी करके एक है, तो लास्ट ईयर आईपीएस थे, इस बार आईएएस बने हैं, उनका विजन पे कॉपी है एक बार वो चेक कर सकते हैं, विजन के साइट पे ही है। सर इन्हीं का एक और कॉपी सर विजन की वेबसाइट पे अवेलेबल है, मैंने खोल के देख देखा। लिया उसका हमने टॉपिक एक ही है पढ़ा, फिलोसफिकल। एक पढ़ लिया हम लोगों ने, वो 2019 का है वो, बिफोर यू ज्वाइन वी एक्चुअली डिड दैट थिंग। हाँ ओके ओके यस, आई वाज, हाँ इसीलिए आई वाज हेजिटेंट। नो इश्यूज नो इश्यूज। ओके, दिस वन ना, यार एक, कमिटमेंट टू आइडियल्स नॉट आइडल्स। हाँ वही वो दिस हो वन, गया वो डिस्कशन, आप रिकॉर्डिंग देख लेना बाद में। जी 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 जी। लक्ष्मण सर्च कर दो एक बार LAX करके, बट उसमें भी जो टॉपिक है ना, अब गांधी रेमिनिसिंग द मैन फॉरगेटिंग द आइडियल्स, क्या फिलोसॉफी का लग रहा है कि LAX
LAXMAN, हाँ। इनका रैंक 71 था और 143 मार्क्स है इनके। He got 143 marks in 2020 ऐसे। अभी एग्जाम एक डेट Yes, देख I लेना एक think बार इसको बिहार कैसा। कैडर ना, लक्ष्मण तिवारी बिहार कैडर। हाँ मतलब सही था क्योंकि इनको उसके पहले भी IPS मिला था, ऑब्वियसली उनका पहले भी अच्छा ही होगा ऐसे वाला। पहला टॉपिक देखो क्या है, गांधी वाला करना है कि Possible, please screen the share and carry on. Share the ठीक है screen. ठीक है ठीक है। देव सर, could you please share your screen? Yes, yes, I can. Okay, please go ahead. क्या दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है? विजिबल। Anyone please, क्या स्क्रीन दिख रहा है? हाँ जी दिख रहा है। जी जी, ओके। अब मैंने PDF शेयर कर दिया, मैंने खोल दिया आपने? ओके हाँ हाँ, मैंने वेबसाइट से खोल लिया। हाँ, नो इश्यूज नो इश्यूज। आप पढ़ लोगे क्या सर, या कोई और पढ़ना चाहेगा? हाँ ठीक है, कोई और पढ़ना चाहे तो पढ़ दे, नहीं तो फिर आई कैन डू इट। ठीक है, अगर आपको है मतलब मैं पढ़ देता हूँ। टेबल कर लीजिए। अच्छा, एक और चीज, कभी कभार स्क्रीन थोड़ी ब्लर रहती है, तो इफ यू गाइस वांट यू कैन डाउनलोड इट इन योर फोन एज वेल। मैंने लिंक शेयर कर दिया ग्रुप में। कंटिन्यू गाइस। देव सर पढ़ लीजिए। ओके। मैं रिकॉर्डिंग फिर से चालू कर लूँ क्या यार, इस विषय के लिए? ज़्यादा भी लंबा कोई मतलब नहीं है ना? जी जी, 1 घंटा हो गया आई थिंक रिकॉर्डिंग। हाँ, 1 घंटा 12 मिनट हो गया। ठीक, मैं स्टॉप करता हूँ, देन आई विल स्टार्ट अगेन। ओके ओके।